आई रिमेम्बर मेरे पापा को हमेशा टॉन्ट किया जाता था कि आप अपनी बेटी को क्यों सिखाते हो, आपकी बेटी भाग जाएगी। आई कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर women are not encouraged to go out, हम्म। study, hold career aspirations, or they are supposed to get married after a point and have children and settle. Delhi गई preparation के लिए, mock interviews and everything, and that time when I got to know that my mother was diagnosed with breast cancer, so like just 10 days before my interview, उस टाइम मेरे दिमाग में यही था कि बस मेरे पापा को मुझे सही करना है, बेस्ट ट्रीटमेंट देनी है। और पता नहीं क्यों मुस्कान, आई वॉज नॉट टेंस्ड फॉर सम रीजन। आई वॉज लाइक ये मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, बस मुझे ठीक करना है। मेरे लिए बहुत इमोशनल है ये सर्विस भी, सर्विस में आना भी, कि यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम। In a world where most of us struggle with even minor setbacks, imagine tackling one of the toughest exams in the country while your life undergoes tectonic turmoil. This is not just a story of passing the UPSC. It's the story of Manisha Avhale, an IAS officer who faced battles far beyond the exam hall, challenges that would have crushed the spirits of many. Her victory wasn't just in the result, it was her inner ability to rise time and time again when the world seemed determined to pull her down. This interview is more than just a discussion about UPSC strategies. It's a tribute to the power of the human spirit, the importance of family, and the will to keep going when the world seems to be crumbling around you. Manisha Avhale's story is not just about cracking an exam, it's about conquering life. Let's hear in her own words how she turned her darkest hours into stepping stones towards her success. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप अपने स्टार्टिंग के लाइफ से बताएं, अपना स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, देन विल कम टू यूपीएससी। Yeah, it's actually a very long journey. In the sense कि my father is a farmer, and he's still into like farming, and he comes from a very, we actually all of us come from a very remote village in Maharashtra, as one of the aspirational districts of Maharashtra, Vashim. एंड वहां से एक कॉर्नर के विलेज से उन्होंने डिसाइड किया कि मेरी बेटी को मुझे आईएएस बनाना है। मतलब व्हेन द मोमेंट आई वाज बोर्न ही वाज लाइक कि मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी। तो कैसे उनके दिमाग में था कि मैं पढ़ नहीं पाया, एंड देयर वर नॉट इनफ स्कूल्स और स्कूल्स आल्सो अराउंड, एंड ही वुड गो टू विजिट different tehsil offices, maybe video office, and he would see उस रैंक के ऑफिसर्स, एंड दैट टाइम दे थॉट कि सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल है तो आईएएस ऑफिसर है, जो कि गेम चेंजर हो सकता है सबके लिए। तो एट दैट टाइम ही वाज लाइक कि मेरी बेटी जाएगी तो यहाँ, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड ही पुट मी इन डिफरेंट बोर्डिंग स्कूल्स। मतलब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड से एज फार एज आई रिमेम्बर आई हैव ऑलवेज स्टडीड इन बोर्डिंग स्कूल, डिफरेंट डिफरेंट चेंज करके देन वी रीच्ड पुणे, एंड पुणे से फिर लॉ कॉलेज किया है। लॉ करते समय आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दिस, आई समवेयर आई वाज लाइक कि नो आई डोंट वांट टू गो टू यूपीएससी, and it might be too, because we have our own क्या बोलते reservations also, it's so competitive, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। But my father was always very confident, and he always encouraged me. I remember 2016 का इंसिडेंट हुआ था, द रेप, दिल्ली वाला जो निर्भया, निर्भया, बड़ा यस। हत्याकांड। हाँ, उस टाइम पे नो फादर वुड हैव थॉट अबाउट सेंडिंग नहीं। her daughter to Delhi, but my father pushed me and I was there. Sorry, 2016 नहीं, 2012, 12, यस। हाँ 12 का। And in 14 I was in Delhi, तो पढ़ाई कर रही थी मैं, and he came, and then he also, the amount of trust he put in me was also a lot. Coming from that background, again I want to underline कि I come from a place where women are not encouraged to go out, हम्म। study, hold career aspirations, or they are supposed to get married after a point and have children and settle. So he that immense trust that he put in me, and he sent me to Delhi. He allowed, in the sense that he did everything that he could to be I'm wherever I am because of him, I feel. So that kind of thinking. तो मेरी उस तरीके की जर्नी काफी स्मूथ, इन द सेंस कि मेरे लॉ कॉलेज तक काफी स्ट्रगल मेरे लिए कम रहा है बिकॉज ऑफ माई फादर। सो आई डोंट नो इन द बैकग्राउंड हाउ मच ही वाज सफरिंग, ही डिड नॉट लेट दैट कम टू अस। एंड सेकेंड थिंग वाज, जब मेरी यूपीएससी जर्नी जब शुरू हुई ना, तो माई मदर फॉलिंग इल was not the only thing that happened in our family. So ओके। when I studied for my first attempt,
and my mother was with me for the 2 months that she was during my prelims preparation. And I still remember the date. I think 7th August को 16 की prelims दी थी मैंने, और उसी दिन मुझे पता चला कि my father was very ill, and we immediately flew back from Delhi to Washim, and then we found him literally on a stretcher, fighting for his life. And then I shifted him to Pune, and then he was hospitalized for 2 months altogether. So he had E. coli infection, तो उसके लिए बहुत मेजर सर्जरीज वगैरह करने पड़े, तो 2 months के लिए completely ICU में थे. उसके बाद फिर he was shifted, he was but then it started from that time. And I remember when I had forgotten कि मेरा प्री का रिजल्ट कब आने वाला है, क्या होने वाला है. And then one fine day I called my friend कि क्या कैसे चल रहा है, when he was out of danger and he was shifted out. तो they said कि अरे रिजल्ट आ गया, तुमने देखा नहीं. तो 15-20 दिन बाद मैंने रिजल्ट देखा, and I had cleared, and then I told my father, and he was very happy, and he said immediately go to Delhi. And then I did go back, and I did, but मुझे कोई होप्स नहीं थे कि मैं क्लियर कर पाऊंगी. बट आई गिव माई मेंस, देन आई शिफ्टेड बैक फ्रॉम दिल्ली. फिर मुझे लगा मेंस क्लियर नहीं होगा, पर मेंस समहाउ क्लियर हो गया. फिर मेंस क्लियर हो गया, मैं फिर दिल्ली गई प्रिपरेशन के लिए, मॉक इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग. एंड दैट टाइम व्हेन आई गॉट टू नो दैट माय मदर was diagnosed with breast cancer, so like just 10 days before my interview. Okay. And then that was my first attempt actually. And then I came back for my mother's sake. I was like, yeah, after giving the interview, then I was completely taking care of her in the village. तो ये ऐसा ना एक झटके में हम बोल देते हैं, but when you see the entire thing ना, तब बहुत traumatic in the sense कि तब we were fighting for lives basically. एंड उस टाइम वही फोकस था कि यूपीएससी कुछ मैटर नहीं करता है भाई, पहले तो हमें जिंदगियां बचानी है, सबसे इम्पोर्टेंट वाली. तो वही चल रहा था फायर. एंड देन अल्टीमेटली आई गॉट द रैंक ऑल्सो दैट ईयर. 833 आया था मेरा रैंक. और आई गॉट इनटू IRAS, रेलवे अकाउंट सर्विस में. एंड आयरॉनिक थिंग वाज कि उस टाइम मुझे सारी चीजों में बहुत अच्छे मार्क्स थे. आई वाज टॉपर इन एसे इन एंटायर इंडिया. मतलब मुझे जीएस में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट द ओनली सब्जेक्ट दैट आई कुड नॉट स्कोर वाज ऑप्शनल, एंड ऑप्शनल वाज लॉ ऑप्शनल. So being a lawyer, it was very funny that I could not it was so bad that in sociology, in the attempt that I cleared, I got IAS. उसमें मुझे I still remember मुझे 320 marks थे, and law में मुझे 180 marks थे. Imagine, like half. So yeah, so it made a major difference that year. But still, that the day my result was announced, he was so unhappy. He was so he was like, how can you get this rank? It is not possible for you to get this rank. I was like, what is wrong with you? We as a family have gone through so much. Right. And to get here also, I think I'm happy that we got something. It's like, no, don't be happy. You can't settle here. You have to go back, and you have to start studying again, and you have to give another attempt. And sent me back again because I had shifted from Delhi. I had absolutely no interest in going back to Delhi. I was like, I'm done with this studies, and I don't want to, like, it's okay, like whatever. No, you're not made for this service. You have to give IAS only and come back as collector Maharashtra. I was like, ठीक है, मुझे IAS मिल जाएगा, तो what is the guarantee of coming to Maharashtra? हाँ. But it so happened that I also got Maharashtra address. So yes. So yes. So what was that moment जब आपको पता चला कि एक तो सबसे पहले आपके फादर की तबीयत खराब हो गई जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम वगैरह दे दिए थे, देन ऑफ कोर्स जब प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो जाता है, सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेन एग्जाम. Exactly. हाँ, तो वो एक पीरियड. फिर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू का समय था, 10 दिन पहले आपको पता चला कि आपकी मदर को शी वाज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर. सो व्हाट वाज दैट मोमेंट? कैसी वो फीलिंग थी? क्या था? कितना स्ट्रेस था? I'm telling you now that I went back home thinking that my father might be, ऐसे provisionally थोड़ा कुछ हुआ होगा, maybe like जैसे क्या होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच में कुछ हुआ होगा, and it might be cured within 15-20 days time, and I'll come back and I'll start studying immediately, because till then I was very much into my studies. I was very focused. मुझे ये है वो है,
पूरा एंटायर प्लानिंग कि मैं 8 दिन जाऊंगी, वापस आऊंगी, मेंस करूंगी. एंड व्हेन आई सॉ हिम, he started crying. He was like, अब मेरा क्या होगा, मैं तो गया, that was the moment we were going through. And I think for him I am his strength more than anything, and for me of course he is mine. तो वो देख के बहुत सुकून लगा. हम एंड इमीडिएटली आई शिफ्टेड हिम टू पुणे. मुझे पता है दीनानाथ में हम गए थे, somehow we got the bed, फिर वहां से ट्रीटमेंट शुरू हुआ. तो उस टाइम मेरे दिमाग में यही था कि बस मेरे पापा को मुझे सही करना है, बेस्ट ट्रीटमेंट देनी है. और पता नहीं क्यों मुस्कान, आई वॉज नॉट टेंस्ड फॉर सम रीजन. आई वॉज लाइक ये मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, बस मुझे ठीक करना है. एंड आई हैड फॉरगॉटन अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एल्स. तो यूपीएससी वॉज नॉट एट ऑल ऑन माई लिस्ट ऑफ टू डू थिंग. और फिर मैं वो जब मेरा रिजल्ट जब मैंने देखा और मैं जब पास हुई थी, जब मुझे फिर से जाने के लिए उन्होंने बोला, and then he was of course released after 10-20 days. तो तब भी मेरे को, मैं इतना, because I was continuously in the hospital for 2.5 months, तो I was so emotionally torn that I could not pick up my books to study. And I remember कि उस टाइम पे demonetization हुआ था, that 2016. हाँ, I was in Delhi only. I was like, अरे अब क्या करना है, कैसे जाना है. And that time I was like, I'm shifting back to Pune. So mid term time पे जब means मुझे 1 महीने में देनी है, मैंने shift कर लिया वहाँ से. I shifted from Delhi to Pune. And I was staying with my brother. मेरा brother वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था. And of course my father was also there. He was released from the hospital. तो उस टाइम पे फिर मैं ऐसा था कि ठीक है, कैसे तो भी मुझे देना है, बिकॉज मैं पास हो गई हूँ, मुझे देना है, ऐसा था मेरे दिमाग में. फिर मेरे को लगा कि ठीक है, हो जाए तो हो जाए. और बस फिर फिर मैंने कुछ सोचा ही नहीं था. उसके बाद आई वाज लाइक कि अभी मैं लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी, ऐसा कुछ. और एंड आफ्टर दैट ऑल्सो घर पे ही मैं आ गई थी. इनफैक्ट आई शिफ्टेड बैक टू वाशिम उसके बाद, एग्जाम देने के बाद. एंड आई वाज स्टेइंग विथ हिम बिकॉज ही कुड नॉट वॉक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड फिर मेरा जब रिजल्ट आया तो आई वाज अगेन एनकरेज्ड कि मींस क्लियर हो गया, चलो. बोले कि फिर से जाओ. और मैंने बोला नहीं, बहुत ऐसा कैसे, घर का कौन देखेगा, हु विल डू द थिंग्स. इज लाइक डोंट वरी, हम कर लेंगे. एंड फिर दूसरा झटका तब लगा जब मम्मी को डायग्नोज हुआ, बिकॉज माय मदर वाज स्टेइंग विथ मी फॉर द प्रीलिम्स. शी वाज देयर. And when doctor told us that she had been carrying the disease for 1 year at least, and she was in pain and everything, वो अब बहुत नया था हमारे लिए, because there are myths, will come to that also, what are the myths that are attached to breast cancer also. और फिर उस तरीके से फिर डायग्नोज होना, और उन्होंने मुझे बताया नहीं इन द सेंस कि क्या हो रहा है. देवर सेइंग कि बायोप्सी है, ये है, करना पड़ेगा उस तरीके से. एंड देन बट आई सेंस्ड इट somehow. I was like something is going wrong. And most of the times what our parents do is they try to hide things so that you are in a comfortable place और तुम टेंशन ना लो उस तरीके से. तो but somehow I was like कुछ तो गलत है. Then I asked my mom and she told me this is what has happened. And in that moment also I was like I have to go back to my family. I have to I have to be there for them as an elder sibling, जो बहुत ही elder daughter of the house. I have to be there, I have to support them, take care. तो मैं उस तरीके से ही मैंने तुरंत इंटरव्यू दिया, जैसे भी गया उस तरीके से. और फिर आई गिव माई 100% फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो, एंड इट वॉज गुड इंटरव्यू. और फिर मैं वापस आई, एंड अगेन then coming back, फिर सर्जरी, कीमो, रेडियो. एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग मील्स, बिकॉज गाँव में कोई तुम्हें कुछ नहीं मिलता है. यू डोंट हैव हाउस हेल्प और यू डोंट हैव एनी नर्स एंड नोबडी यू हैव. तो गाँव में रहना मतलब सब कुछ तुम कर रहे हो. मैं घर का पूरा काम करती थी, मम्मा को पूरा 3 टाइम के मील्स, उनका पूरा शेड्यूल. फिर हर 8-10 दिन बाद उनको नागपुर लेके जाना होता था. एंड इन दैट मोमेंट वी वर लाइक ओके, मेजर स्टफ इज हैपनिंग. उस टाइम हमें लगा कि ह्यूमन हेल्थ कितना साइडलाइन किया जाता है, एंड और ऑलवेज पुश्ड, मार्जिनलाइज्ड. बट थैंकफुली जैसे कि मेरे पापा, ऑल्दो ही लिव्स इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, बट उनके जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. लाइक उन्होंने फॉर मी ऑल्सो, फॉर हिज डॉटर एंड फॉर हिज वाइफ ऑल्सो, ही हैज ऑलवेज टेकन स्टेप्स एट द राइट टाइम. तो इसीलिए वो
हो पाया ढंग से. So, so I think more than the tension, it was about, carrying out my responsibilities and addressing in that moment कि बस ठीक होना है, ठीक हो जाएगा, और कभी उस डाउट नहीं आया कि अभी कुछ ऐसा है या वैसा है. बस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत नया भी था. ब्रेस्ट कैंसर 8 years ago, I think 8 to 10 years ago Yeah. was a different ball game altogether. It was very new in the society. मतलब at least in It was rural. new and ट्रीटमेंट वगैरह भी इजीली अवेलेबल नहीं था, Available नहीं मेडिसिन था. नहीं थी उस वक्त जितना अभी, जितनी अभी अवेलेबिलिटी है कितना सब है चीज की. एग्जैक्टली. ऑल्दो एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट फॉर अ वगैरह. रूरल फैमिली ऑल्सो कि हम्म. उनके लिए तो ऐसा था कि हेरिडिटरी होता है, पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया, तो इस तरीके से. हाँ, राइट. और प्लस अभी भी अगर ट्रीटमेंट है तो इट इज सो कॉस्टली कि सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उसको. आई वांट टू कम टू दैट ऑल्सो कि क्या होता है ना, फैमिली की एक पूंजी होती है. तो जैसे मेरे पापा ने भी बहुत फार्मिंग में, एनी एग्रीकल्चर बहुत ही रिगरस है, उसमें बहुत काम है वगैरह वगैरह, उसके आउटकम्स इतने, आउटपुट इतना ज्यादा नहीं है. तो एक पूंजी जो तुम संभाल के रखते हो, इंश्योरेंस नहीं होता था पहले, कुछ नहीं था 10 साल पहले, एब्सोल्युटली नथिंग. राइट. तो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तुम्हारा, जो तुम्हारे पास पूरा है उसको बेच के, सोना है, गहने हैं, व्हाटएवर पैसा है, बैंक बैलेंस सबको निकाल के, यू थ्रो, it's gone in a matter of 6-7 months. It was all there. So it pushes you in the गरीबी का कैसे डार्क होल में तुम पुश किए जाते हो because of medical emergencies in your family. मुझे तब पता चला कि ऑल्सो मैं इतनी टेंशन फ्री थी और मैं इतने अच्छे से मेरे पापा का ट्रीटमेंट, मम्मा का ट्रीटमेंट कर पाई क्योंकि मेरे पास वो बैंक बैलेंस था कि पापा ने बोला था कि ये लो भाई कार्ड है या फिर ये मेरा अकाउंट नंबर है, जब जैसे पैसे मांगे वैसे दो. तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने तब तो नहीं पड़े थे कि क्योंकि हमारे पास था कि सपोर्ट कर पा रहे थे. बट मुझे वही लगा कि हिज एंटायर जो उन्होंने कमाया था वो 2 इमरजेंसी में पूरा उन्होंने चल गया, लगावा बस है, लाइक इट वाज ऑल गॉन. तो फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली इट इज वेरी इजी टू फॉल इन बिलो पॉवर्टी जोन. मतलब ऐसा है कि वो कोई ऐसा ये नहीं कि हम मिडिल क्लास ही रहेंगे. यू अगेन गेट पुश्ड बैक टू बिलो पॉवर्टी लाइन. ऐसा हो जाता है, यहाँ से ऊपर नीचे होता रहता है. तो मेजर था मेरे लिए तो बहुत ही आई ओपनिंग इन द सेंस कि आई चेंज्ड एज अ पर्सन ऑल्सो. आई गॉट टू नो अबाउट माई ओन स्ट्रेंथ्स कि क्या मैटर करता है, और इसीलिए मेरे लिए बहुत इमोशनल है ये सर्विस में आना भी कि यू शुड नॉट फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम. राइट. है ना, क्योंकि इतना उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में रख रखे. सोचो मेरी बच्ची आज आई हैव अ डॉटर ऑफ 2 years old एंड व्हेनेवर आई हैव टू लीव हर ना, तो मुझे एकदम धस हो जाता है. आई फील सो बैड. आई constantly remember her face and everything. छोड़ देना पड़ता है, काम है at the end of the day. But for them उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में रखा मेरे भाई को तो फर्स्ट क्लास से, मुझे जस्ट क्योंकि हमारा एक सिक्योर ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए इसकी वजह से. एंड माय मदर इज अ 4th standard फेल चाहे, मतलब ऐसी है कि उनको नहीं आता है. मेरे पापा 10वीं 12वीं फेल है, हार्डली मतलब कुछ ऐसे पास हुए है कैसे तो भी. तो उस बंदे ने मतलब इतना सोचना, उस फैमिली ने इतना सोचना, सो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज एंड परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, एवरीथिंग, एंड गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटी. आई रिमेम्बर मेरे पापा को हमेशा टॉन्ट किया जाता था कि आप अपनी बेटी को क्यों सिखा रहे हो, आपकी बेटी भाग जाएगी, नाम आपका काला मूर्ख कर देगी, लॉट ऑफ थिंग्स. बट ही हैज ऑलवेज एनकरेज्ड मी, ऑलवेज. So I think everything that I am, I owe to him and my mother, of course, and both of them, they have been very nice to me. So nice to hear this. इतना सारा इंसिडेंट हुआ तो ऑलरेडी काफी स्ट्रेस प्रेशर रहता है, और इसके साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी, विच इज ऑल्सो वेरी मच स्ट्रेसफुल एंड काफी प्रेशर होता है उसमें भी. तो हाउ, मतलब यू हैड एनी काइंड ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म और रूटीन्स ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन? Yeah, yes, I feel it is so normal to have that kind of stress. I remember मेरा दिल्ली में रह के मेरा पूरा डाइजेशन खत्म हो गया था बिकॉज यूर ईटिंग आउट, ये कर रहे हो, एंड स्ट्रेस की वजह से भी तुम्हें बहुत सिम्टम शुरू हो जाते. मुझे हर बार एग्जाम के पहले आई वाज डायग्नोज्ड विद टाइफाइड. मुझे हर रिकरिंग टाइफाइड हुआ है मुझे. सो
प्रीलिम्स के इनफैक्ट इट्स सो हैपन दैट कि नेक्स्ट टाइम मैं जब प्रीलिम्स दे रही थी, एक्चुअल प्रीलिम जिसमें मैं क्लियर हुई एज एन आईएएस, उस टाइम पे आई वाज डायग्नोज्ड विद टाइफाइड, आई वाज इन द हॉस्पिटल एंड मेरी प्रीलिम्स में हॉस्पिटल से करके मैंने प्रीलिम्स दी है, जस्ट आई वाज जस्ट आउट एंड तो एंड देन इवन बिफोर गोइंग टू लबासना आल्सो आई हैड टाइफाइड, तो इट एक्चुअली अफेक्टेड माय हेल्थ, एंड हेल्थ तभी नीचे जाता है व्हेन योर इम्यूनिटी एंड योर मेंटल स्ट्रेस इज अफेक्टिंग योर बॉडी आल्सो. But before, when I was preparing rigorously for 1 year, I had a very proper routine in the sense कि I would do jogging, मैं jogging जाती थी, I was writing also, I was painting. तो meanwhile I would take my breaks. So because UPSC का जो जर्नी है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, वो ऐसे एक दिन का नहीं है. इट इज अ रिगरस प्रोसेस ऑफ 2 years कम से कम इफ यू आर क्लियरिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो ये जो लॉन्ग प्रोसेस है उसमें तुम कितना भी प्लान कर लो, उसमें तुम 90-95% में भी जो बहुत ही अच्छा है वो जा सकता है, बाकी 70-60% अगर तुम फॉलो करते तो यू विल बी एबल टू डू क्वाइट वेल. तो मैं हमेशा प्लान रखती थी, बट देन व्हेन आई नीडेड ब्रेक आई वुड टेक ब्रेक. जैसे हाँ, अगर देन आई वुड इंडल्ज माई सेल्फ इन वॉचिंग समथिंग, और मैं फ्रेंड्स के साथ जाती थी, बट आई वुड स्टेप आउट. तो मेरा ऐसा था कि कंफर्टेबली जो मुझे कवर करना है, जो प्लान वे से वो मैं कर पा रही हूँ, एंड इवन इफ आई टेक अ ब्रेक तो मैं वो कर पाऊंगी उस तरीके से. डोंट गेट लॉस्ट, आई फील यू नो वी शुड नॉट लूज. पता है मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा भी क्यों नहीं करती हूँ, देयर इज अनदर एंगल टू इट, कि मुझे लगता है कि हम भगवान नहीं, हम सेलिब्रिटी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट द ओनली करियर दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी. और ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत ही सुकून भरा है, इट हैज अ वास्ट कैनवास एंड बहुत अच्छा कर सकते हो तुम. बट वो तुम किसी भी करियर में कर सकते हो. तो यू नो पीपल शुड नॉट लुक एट मी एंड बी लाइक अरे देखो ये सेलिब्रिटी, मतलब ये आईएएस है, आईएएस का ऐसा है वैसा है. नो, डोंट डू दैट. यू नो मैं बनी हूँ इसलिए तुम मत बनो. यू नो बिकम बिकॉज यू वांट टू. यू नो तो इसीलिए मेरा डिसीजन भी यही था कि मैं लॉ कॉलेज में नहीं करना चाह रही थी, कि बस लाइक मुझे भी लगना चाहिए कि जस्ट मेरे पापा का ड्रीम था, मेरे फादर को चाहिए था, इसलिए मुझे नहीं करना था वो. तो व्हेन आई थॉट अबाउट, मैंने एक टाटा टिस में थी मैं, मुंबई टिस में, आई वाज इंटर्निंग विद देम, एंड इट सो हैपेंड दैट आई वाज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो उसका एक स्टडी चल रहा था गवर्नमेंट का. तो आई वाज अटैच्ड विद दैट प्रोजेक्ट, सो इंटरव्यूइंग अ लॉट ऑफ वुमेन पुलिस फंक्शनरीज एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस. तो मुझे उस टाइम थोड़ा ब्रीफली एसोसिएट हो गई थी मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से. तब मुझे थोड़ा लगा कि गुड स्कोप है, अच्छा काम कर पाएंगे, एंड आई शुड गिव इट अ ट्राई. उसके बाद मैंने बहुत कॉन्शियस एंड इन्फॉर्म डिसीजन लिया था टू गेट इनटू यूपीएससी जर्नी. लाइक माय फादर का सपोर्ट था ही, एंड इट सो हैपेंड दैट आई आल्सो डिव इनटू दैट थिंग. तो हर एक, हाँ एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है कि हर कोई पर्सन जो प्रिपेयर करना चाहता है अंडरस्टैंड कि तुम्हारे प्राइम ईयर्स ऑफ योर लाइफ यू आर गिविंग. और क्या होता है ना, कम से कम मिनिमम 3 years दे आर गॉन. फिर तुम्हारा डिग्री से तुम बहुत आगे हो जाते हो, यू नॉट वर्किंग. फिर 3-4 अटेम्प्ट के बाद तो 5 साल हो जाते हैं, 4-5 साल, एंड देन टू गो बैक टू सम अदर करियर ऑप्शंस, डिप्रेशन है, इकोनॉमिक लॉस, somebody has to support you, बहुत चीजें हैं, अल्ट्रा लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन. एंड दिस एग्जाम इज ऑल्सो नॉट, इट्स नॉट लाइक कि तुम बहुत 100% दो और हो ही पाओगे. राइट. सक्सेस रेशियो इज सो, मतलब मिनिमम 0.01%, मतलब बहुत ही ऐसा है. तो उस तरीके से भी सोचना चाहिए. तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें वो उस तरीके की कैलिबर, इन द सेंस कि देखो हर किसी इंसान का एक अपना कैलिबर उस फील्ड के लिए होता है, तो वो यू जज दैट एंड अकॉर्डिंगली गो. ग्लैमरस लग रहा है इसलिए यू नो ये कार मिली, घर मिलेगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मुझे एंड आई थिंक द सोसाइटी इज आल्सो कंप्लीटली चेंजिंग. वो जो जिस तरीके का स्टील फ्रेम जो पहले हुआ करता था उस तरीके से नहीं है अभी. एंड वी आर लिविंग इन अ वेरी टेक्स्ट हैवी सोशल मीडिया काइंड ऑफ वर्ल्ड नाउ, जहाँ पे करियर ऑप्शंस भी बहुत डिफर कर रहे हैं. सिटीज अर्बन डेवलपमेंट इज अनदर जो बहुत रिच डायनामिक्स दैट आर इवॉल्विंग. तो lot of scope is there, I feel. Right. So what are, I would like to know for our audience that what are some of the misconceptions about the UPSC journey that you would like to dispel?
मुझे लगता है कि लॉट ऑफ थिंग्स अभी तो थोड़ा मेरे टाइम पे क्या था ना कि दिल्ली में पढ़ाई होनी है, वही कर सकते हो, ग्रुप स्टडीज है या हाँ। फिर लॉट ऑफ थिंग्स, छोटी छोटी चीजें। बट अभी तो काफी चेंज भी हुए हैं बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, Yeah. क्लासेस भी इवॉल्व हुई है। और यही क्लास होनी चाहिए क्या, वही क्लास होनी चाहिए, महंगी क्लास, सस्ती क्लास, लॉट ऑफ थिंग्स। तो पढ़ाई करनी है क्या, तो है करनी है, बहुत देर तक करनी, वो सब तो रहेगा ही। बट तुम्हें किस तरीके से तुम करते हो उस पे ज्यादा डिपेंड करता है, रादर देन व्हाट आउटसाइड पीपल आर टेलिंग यू। तो देन चूजिंग ऑप्शनल्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर ओनली, दैट गोज विदाउट सेइंग कि वो तुम्हें करना ही पड़े। राइट डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली मैटर्स, सो डोंट रिलाई अपॉन एनीबडी एल्सेस ओपिनियन कि मैं भी जो बोल रही हूँ आज, तुम मुझे ब्लाइंडली मत फॉलो करो ना। मतलब आज एक हमारा ट्रेंड हो जाता है कि सो एंड सो टोल्ड दिस, यही है, ये राइटिंग स्किल्स है, ये बुक्स है, ये इसको मिला दो एंड फॉर्मूला इज रेडी। हाँ, so एस्पिरेंट्स फॉलो टॉपर्स कि टॉपर ने हाँ, पढ़ाई किया था, ऐसे किया, तो चल हम भी ऐसे ही करते हाँ, हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैंने ऑनेस्टली आई डिड नॉट इवन नो एनी टॉपर। मतलब मैं किसी से मिली ना, मैंने किसी टॉपर को फॉलो किया ना कुछ किया। और आई रिमेम्बर मैं जब सर्विस फिल कर रही थी ड्यूरिंग माय फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम पे, सो आई हैड वन कॉलेज सीनियर एंड ही टोल्ड मी कि तुम ये सर्विस ऊपर भरो, ये नीचे करो। तो वो मुझे थोड़ा सा गाइड कर रहा था उस टाइम पे। एंड लेटर ऑन व्हेन आई टोल्ड हिम कि मैंने पेपर्स दिए, ही इज लाइक यार यू विल बी इन टॉप 50। आई वाज लाइक has he gone mad, कुछ भी बोल रहा है। I just brushed it off, but then when I actually my rank was 33, मेरे को ही शौक लग गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। So imagine the toppers also don't know they are going to be toppers। तो तुम फिर तो देखो, एक बार मेरा रैंक आ गया तो मैं तो कुछ भी बोलूंगी ना, 10 things I can say कि ये किया था, वो किया था। Right. तो moral of the story is have your own, because तुम्हारे strengths, तुम्हारे weaknesses, तुम्हारे तरीके चीजों को हैंडल करने के बहुत अलग हो सकते हैं। एंड there is not one single answer to the questions Right. that CSE asks also। Hmm. Like इस सिनारियो में तुम क्या करोगे, तो you might have a different take also ना, and that is how you become as a person। मुझे लगता है कि आज थिंग्स हैव मेड मी स्ट्रॉन्गर पर्सनल फ्रंट पे या फिर प्रोफेशनल जर्नी में भी। बट we can face them in so directly head on also because of the situations when we were preparing, जिस तरीके से हम गए हैं, स्ट्रेस से गए हैं, उसकी वजह से भी। तो इट मैटर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड इज नॉट फेयर। आई एम टेलिंग यू, तुम कितना भी, ऐसा भी है यूपीएससी में कि तुम कितना भी फेयर करो, तुम कितना भी हार्ड वर्क करो, लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। एंड जैसे इंटरव्यू है फॉर दैट मैटर, हाउ यू आर डूइंग इन दैट प्लेस, इन दैट टाइम, इन द फ्रंट ऑफ द बोर्ड पे कैसे परसीव कर रहा है। बहुत बहुत सारे टिडबिट्स है जो कि डिपेंड करता है। कॉल इट लक, कॉल इट एनीथिंग, जो भी है। हाँ, तो होता है, तो डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक वन शुड नॉट गेट स्टक इन दैट साइकिल, विशियस साइकिल में तुम 2-3 अटेम्प्ट, मुझे लगता है ठीक है, हो रहा है ठीक है, नहीं तो गेट आउट। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, प्लीज अंडरस्टैंड। इट कैन नॉट बी, एट द एंड ऑफ लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल अदरवाइज ऑल्सो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, फिर एक बार तुम यहाँ आ गए ना, तुम देन यू आर स्टक फॉरएवर। Right. So any advice for the aspirants who are preparing for UPSC, especially for the people जो like आप काफी टफ टाइम से गुजर रहे थे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे। सो आई बिलीव कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज में उलझे हुए हैं, बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो एनी एडवाइस फॉर देम? जैसे कि keep going, I think, keep working on yourself very dedicatedly, and like मैंने पहले भी मेंशन किया कि don't lose hope once you and confidence कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत बड़ी चीज है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे लिए नहीं था। तो तुम आए हो thinking that you will be able to do it। So कोई भी स्टेज पे ये लगना कि नहीं हो पाएगा, ये बहुत स्वाभाविक भी है, but don't let it drag you down। सिचुएशंस उतना ही तुम्हें टफ बनाती है अगर तुम उसको हैंडल कर पाओ उस तरीके से। तो
एंड बी इन्फॉर्म्ड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि बस मैं मन में बना लिया और मैं चल रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड, टेक गुड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, like very simple thing like choosing your optional, which books to study from, which classes to join, how much time to give to for what, proper planning, discipline, life, ये सारी चीजें रख के मैं ये सब बोल रही हूँ कि ये तुम सब कर रहे हो, उसके बाद भी अगर इफ यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस तो फिर बनता नहीं है ये, तो इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। तो फिर उस वजह से कि उस सिचुएशन में अगर तुम ऊपर आते हो ना उस सिचुएशन से, देन यू विल बिकम अ हीरो फॉर इन योर ओन आइज and for your parents or your family also, and you have every right to tap yourself on the back and be proud of yourself. I think कोई बोले ना बोले तुम खुश रहना है उस तरीके से। एंड ऑल्सो वी सेलिब्रेट सक्सेस ऑल द टाइम, बट फेलियर्स आर द वन थिंग दैट टीचेस अस सो मच। बोले ना, मैं अगर मैं पास नहीं भी होती तो भी मुझे लगता है मेरी जर्नी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट ऑफ कोर्स वंस यू क्रॉस दैट हर्डल you tend to become more aware of what you've been through, तो वो भी होता है, but don't be disheartened and just move on ऐसे है, तो give your 100%. Right. This was just the beginning of Manisha Avhale's incredible journey, one filled with grit, compassion and purpose. But the journey doesn't end here. In the next part of this interview, we will dive deeper into how her mother's fight with cancer inspired Project Nidan, a breast cancer awareness and screening initiative that has been transforming lives in rural Solapur. Ms. Avhale will share how she turned personal pain into a mission to save lives and raise awareness in some of the most underserved communities. So stay tuned to hear how this heartfelt endeavor is making an impact and inspiring hope. You won't want to miss it. Until then, I am Muskan Khandelwal signing off. Do not forget to like, share and subscribe to Indian Masterminds.